اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے خصوصی صنعتی زون کا سنگ بنیاد پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں منصوبوں پر سست روی سے کام ہوا۔ گزشتہ حکومت کے دور میں سی پیک کو منجمد کیا گیا۔ پی ٹی آئی دور میں پاک چین تعلقات تعطل کا شکار ہوئے۔ روس یوکرین جنگ کے باعث دنیا کو مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو چکا۔ گزشتہ 14 ماہ میں معیشت کی بحالی کے لیے انتھک کوششیں کی۔ صنعتی ترقی کے لیے بہت اہم منصوبہ بندی کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آن لائن موبائل رجسٹریشن نظام کا اجرا۔ سمندر پار پاکستانیوں کو وطن میں قیام کے دوران موبائل فون کے رجسٹریشن میں توسیع کی بھی سہولت دی جائے۔ 2 ماہ سے زائد قیام کی صورت میں انہیں رجسٹریشن کی سہولت بھی دی جائے۔ اوورسیز پاکستانی زراعت، آئی ٹی اور معدنیات کے شعبے میں ملکی برآمدات بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ملک بھر میں کھیلوں کی ترقی اور نوجوانوں کو کھیلوں میں عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد میں وزیر اعظم یوتھ سپورٹس انیشیٹو کا آغاز۔ یوتھ سپورٹس انیشیٹو کے تحت سپورٹس انڈورمنٹ فنڈ کا اجرا۔ ایلیٹ سپورٹس پرسن ڈیولپمنٹ، ای سپورٹس کے فروغ کے اقدامات پروگرام کا حصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کی پہلی سپورٹس یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے فیصلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ علاقائی روابط کے فروغ اور معاشی ترقی کی جانب اہم قدم۔ پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹرین معاہدے پر دستخط۔ تقریب میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی بھی شرکت۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی زیر صدارت نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی 2023 کا جائزہ اجلاس۔ پالیسی کے تحت معاشرے میں امن اور رواداری کے اقدار کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اظہار۔ انتہا پسندی کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ ہمیں ملک دشمن ایجنڈوں کے خلاف عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہوگی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا میں نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں۔ ملک میں 33 لاکھ فری لانسرز کو تربیت دی گئی ہے۔ روابط کے فروغ کے لیے 77 ارب روپے کی لاگت سے 83 منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا جائے۔ سیاسی اور معاشی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے منصوبے متاثر ہوئے۔ روابط میں بہتری اور سرمایہ کاری لانا وزارت کی اہم ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر امین الحق۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم اعتماد کی درخواست مسترد۔ چیئرمین پی ٹی آئی 20 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ اور سانحہ 9 مئی سے متعلق مزید ہوشربا تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ شرپسند عسکری ہسپتال، ایئر بیس سرگودا اور عسکری تعلیمی اداروں پر حملہ آور ہوئے۔ پاک امارات ہسپتال کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا۔ سی ایس ڈی لاہور سے لاکھوں روپے کیش لوٹ لیا گیا۔ چکدرا قلعے پر حملے میں ریکارڈ اور گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز شو ایٹ 7 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ گزشتہ پی ٹی آئی دور میں سی پیک کو منجمد کیا گیا اور پاک چین تعلقات تعطل کا شکار ہوئے۔ ہماری حکومت نے گزشتہ 14 ماہ میں ہنگامی بنیادوں پر معیشت کی بحالی کے لیے کام کیا۔ اسلام آباد ماڈل اسپیشل اکنامک زون کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب
खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। माज़ी की गलतियों से सबक सीख कर मुस्तक़बिल को महफूज बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज़राअत, मादनियात, IT की बरामदात बढ़ाने के लिए अहम इक़दाम किए गए। आइंदा आने वाली हुकूमत को इन खतूत पर बेपनाह काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। हमें इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। मिसाक़ मईशत पर सबको मिलकर काम करना होगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा कि तब्दीली की हुकूमत ने CPEC मनसूबों को शदीद नुकसान पहुँचाया। जो मनसूबे 4 साल पहले मुकम्मल होने चाहिए थे उन्हें अब मुकम्मल किया जा रहा है। वज़ीर सनत मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि मंसूबे से इस्लामाबाद के सनतकारों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मॉडल स्पेशल इकनॉमिक जोन के संग बुनियाद की तख्ती की नकाब कुशाई भी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नौजवानों के हवाले से वसाइल मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑनलाइन मोबाइल रजिस्ट्रेशन के निज़ाम के इजरा से टूरिस्ट और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा होगा। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल एप्लीकेशन के इजरा से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन का वक्त बढ़ा दिया गया है। इस निज़ाम के तहत टैक्स की मियाद को 2 माह से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस निज़ाम से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आते हैं इनको फ़ायदा होगा और टूरिस्ट भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में करोड़ों नौजवान IT के शोबे में तालीम हासिल कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म यूथ लोन प्रोग्राम में इस हवाले से फंड रखे गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इस वक्त दुनिया में इसको बेपनाह सपोर्ट मिली है तमाम तरक्की पजीर ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में। इस बजट में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में अच्छे खासे फंड्स रखे गए हैं नौजवानों की तरबियत के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्ड प्रोग्राम। लाखों बच्चों को इस वक्त मेरिट पर लैपटॉप्स दोबारा मिल रहे हैं। IT पार्क जो आपका, इसको आप बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएं। इस मैदान में हम बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। IT के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन फॉर ऑल का विजन दिया है। मुल्क में पहली दफा मोबाइल फोन बनाए जा रहे हैं। 2022 में 22 मिलियन मोबाइल फोन बनाए गए। चेयरमैन PTA ने कहा कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जिद्दत की तरफ गामजन है। तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ऑनलाइन डिवाइस रजिस्ट्रेशन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में खेलों की तरक्की और नौजवानों को खेलों में आलमी मयार की सहूलियात फराहम करने के लिए इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कलील वसाइल के बावजूद हमारे नौजवानों ने खेल के मैदान में मुल्क का परचम सरबलंद किया। इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के तहत स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड का इजरा कर दिया गया है, जिसका मकसद खिलाड़ियों की फलाह व बहबूद, उन्हें आलमी मयार की सहूलियात फराहम करना और खेल की तरक्की है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मदद के लिए एलीट स्पोर्ट्स पर्सन डेवलपमेंट प्रोग्राम और मकामी खेलों के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर तेजी से शोहरत पा रही ई स्पोर्ट्स के फरोग के इक़दामात का भी इजरा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी रखी। रवां माली साल खेल के शोबे के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें से 1 अरब रुपए यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा मौका मिला तो नौजवानों की फलाह व बहबूद और खेल के शोबे के लिए तमाम तवानाइयां सर्फ करेंगे। 5 अरब रुपया इस बजट में रखा गया है। उम्मीद है कि जो भी हुकूमत इलेक्शन के नतीजे में आएगी वो हालात बेहतर होने पर और इजाफा करेगी। जिन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए, मुख्तलिफ
खेलों के मैदानों में। इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। कौम के ये अजीम बेटे और बेटियां आइंदा आने वाले मार्कों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बेनुस्बाई राब्तों के वफाकी वजीर एहसान मजारी और उमूर नौजवान के लिए वज़ीर आज़म की मावन खसूसी शिजा फातिमा ने बताया कि महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत खेलों की तरक्की और खेल से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई कर रही है। गुज़िश्ता एक साल में खेल के मैदान में हासिल होने वाली कामयाबियों पर दस्तावेजी फिल्म भी प्रोग्राम का हिस्सा थी। तकरीब में जोवेलियन थ्रो के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी अरशद नदीम, वेट लिफ्टिंग में मुल्की व बैन अवी सतह पर गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद नूह दस्तगीर बट, कबड्डी में अपना नाम पैदा करने वाली ट्विंकल सुहेल और 7 मरतबा के कौमी पैरा टेबल टेनिस चैंपियन और इस्लामिक यकजहती गेम्स में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले गिलगित के अल्ताफ रहमान की वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अल्ताफ रहमान को स्पोर्ट्स व्हील चेयर के लिए 3.5 लाख रुपए का चेक भी दिया। वज़ीर आज़म ने पैरा ओलंपिक्स में 11 सोने, 29 चांदी और 40 कांसी के तमगे हासिल करने वाली टीम को इनकी शानदार कारकर्दगी पर 50 लाख रुपए का चेक दिया। फुटबॉल के स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप समेत दुनिया भर में होने वाली स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल की मुख्तलिफ चैंपियनशिप में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीम के मेंबरान की वज़ीर आज़म ने हौसला अफजाई की। वेटरन्स ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इजरा को अहसन इकदाम करार दिया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन सेनेट ने दालबदीन एयरपोर्ट की हंगामी बुनियादों पर तामीर नौ के लिए वज़ीर आज़म की खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने IMF के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मोहम्मद शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार को भी सराहा। तालीम और पेशा वराना तरबियत के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हमने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी की। उन्होंने अपनी वजारत से मुतालिक उमूर के बारे में भी वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि कौमी असम्बली की तहलील की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ। PDM और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहदे की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तीनों बरादर मुल्कों के दरमियान होने वाले मुआहदे पर तीनों मुल्कों के हुकाम ने दस्तखत किए। तकरीब के बाद PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि खरलाची, मज़ार शरीफ और तरमस के दरमियान मुआहदा किया गया है। जो है वो जो तवज्जो है वो इस तरफ मबजूल करवाई जाए और गैर मुल्की सरमायाकारों को अट्रैक्ट किया जाए। हमें यकीन है कि ये जो रेलवे ट्रैक बनेगा ये एक गेम चेंजर होगा और ये सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान के साथ और रशिया तक को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करेगा। इस मौके पर सेक्रेटरी रेलवे ने कहा कि रेलवे ट्रैक खत्ते में तजारत में फ़रोग का बाइस साबित होगा। मंसूबे के तहत कोहाट से खरलाची तक 191 किलोमीटर ट्रैक पाकिस्तान, खरलाची से मज़ार शरीफ तक 674 किलोमीटर ट्रैक की तामीर हुकूमत अफ़गानिस्तान की जिम्मेदारी है, जबकि मज़ार शरीफ से तरमस तक रेलवे ट्रैक पहले ही तैयार हो चुका है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं हुकूमत मौसर पॉलिसियों से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से बाहर निकल चुका है। बैरूनी कर्जों की तमाम अदायगियाँ वक्त पर की हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमती काविशों से करंट अकाउंट खसारे में भी कमी हुई है। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है $334 मिलियन। पिछले साल जून 2022 में ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट था 2,321 मिलियन या $2,321 मिलियन। तो इससे हमारी जो 4 महीने की पिछली करंट अकाउंट सरप्लस की वजह से पूरे साल का यानी फिस्कल ईयर 2022-2023 का
जो फाइनल नंबर हुआ है वो करंट अकाउंट डेफिसिट $2 अरब 560 मिलियन। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी पॉलिसी से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ। वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, रियाज हुसैन पीरज़ादा, अब्दुर्रहमान कांजू और मुतालिका महकमों के हुक्काम इसमें शरीक हुए। डीजी नेक्टर ने कौमी पॉलिसी के मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंतहा पसंदी की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। अवाम और स्टेक होल्डर्स के इत्तफ़ाक़ राय के बगैर पॉलिसी का इत्तलाक़ मुमकिन न होगा। इजलास में फैसला किया गया कि स्टेक होल्डर्स को भी वसी मुशावरत में शामिल किया जाएगा। ये भी तय पाया कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी पॉलिसी चंद तरामीम के बाद मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाई जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि IT बरामदात में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। कर्ज के नाम पर फ्रॉड करने वाली 43 ऐप्स बंद कर दी गई हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीनुल हक का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। IT की मदद से रवाबित के फरोग के हवाले से 3 साल में 77 अरब रुपए की लागत से 80 से ज्यादा मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनसे 4 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचा, जबकि इस दौरान 7.1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई। हमने टारगेट किया है कि इस साल दिसंबर तक वो तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया जाए। इन तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के दूर दराज गांव में रहने वाले, देहातों में रहने वाले, सेकंड टियर और थर्ड टियर सिटी में रहने वाले 4 करोड़ अवाम को ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी का फायदा होगा। अब तक मैंने वजारत नहीं संभाली थी तो 15-20 अरब रुपए की लागत से काम किया गया था, बट जब मैंने वजारत संभाली तो 3 साल और 3.5 साल में कहाँ चला गया 77 बिलियन 80 न्यू प्रोजेक्ट। तो आपको फर्क नजर आएगा। अमीनुल हक का कहना था कि 2 हफ्तों में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पॉलिसी काबीना में पेश कर देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत एक साथ बैठी है। मईशत की बेहतरी, ज़र मुबादला बेहतर बनाना, रोजगार के मौके पैदा करना हमारी तरजीहात हैं। कारोबारी अफराद के लिए सहूलियात फराहम की जा रही हैं। IT के हवाले से इस्लामाबाद में एक मेगा इवेंट किया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे बूट कैंप का इनेकाद किया, ट्रेन द ट्रेनर का इनेकाद किया। जब मैंने कहा कि एकेडमियों को ऑन बोर्ड लिया तो हमारी ख्वाहिश क्या थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर नए कोर्सेज का इजाफा किया जाए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन। अमीनुल हक ने बताया कि कर्ज देने के नाम पर लोगों की जिंदगियों से खेलने वाली ऑनलाइन एप्लीकेशंस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऐसी ऐप्स बंद कर दी गई हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि नई मर्दमशुमारी को रजिस्टर करके उसके मुताबिक इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल मुल्की मईशत की तकदीर बदलने के लिए इनकलाबी हैसियत रखता है। फैसलाबाद में कायम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की कारकर्दगी के हवाले से देखिए आसिम रिजवान की रिपोर्ट। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ज़राअत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस सेंटर का क़याम फसल की पैदावार, पानी, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और इंतजाम को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। NIC फैसलाबाद फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के ताउन से तामीर किया गया है। इस सेंटर के क़याम से टेक्सटाइल के शोबे में भी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खातिर खा तरक्की लाई जाएगी। अर्बन हॉर्टिकल्चर के अंदर हम लोग आपके घरों के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाएंगे। IVF में हम क्या करते हैं, उस टॉप 5% को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन गाय के हम ओसाइट्स निकालेंगे, अच्छा सीमन उसको लगाएंगे, वो एम्ब्रियोज बना के जो 5% पहले आपके एलीट परफॉर्मिंग थी, अब उसका परसेंटेज इस तरह से बढ़ जाएगा। NIC में मुतअद्दिद बिजनेस एक्सपर्ट्स और हर शोबे के माहिरीन मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ चैलेंजेस में अपनी राय के साथ साथ मसाइल का हल भी पेश करते हैं। NIC में तमाम फाउंडर्स की खास ट्रेनिंग और तालीमी प्रोग्राम्स को भी यकीनी बनाया गया है। इस सेंटर में स्टार्टअप के लिए खास इन्वेस्टमेंट्स का भी इंतजाम किया गया है। जब ये स्टार्टअप्स यहाँ पे आते हैं, जब ये बिजनेस को आगे लेके चलते हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। NIC में मुख्तलिफ शोबों के दरमियान खास रवाबित कायम किए गए हैं, जिनकी मदद से हर शोबे के माहिरीन अपनी राय का इजहार कर सकेंगे और मुनासिब रहनुमाई से तमाम मंसूबों की कामयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। NIC को हमने 2 माह पहले ज्वाइन किया था और व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम NIC, हम इनसे कनेक्शंस चाहते हैं, नेटवर्किंग चाहते हैं। Probably one of the best NICs in the country and I've been to all of them. We created a fantastic space. हमारे इस बेसिक आइडिया को एक इन्वेस्टमेंट रेडीनेस तक पहुंचाने के लिए जो हमें कोचिंग और ट्रेनिंग दरकार थी वो मुहैया की है। NIC के एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम नेटवर्क में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, एकेडमिया,
डिमांड, नेशनल इनोवेशन सिस्टम और इन्वेस्टर शामिल हैं। NIC में खवातीन के लिए भी खास मंसूबों को फोकियत दी गई है। NIC फैसलाबाद में बैनुल अक़वामी सतह के वर्क स्टेशन तैयार किए गए हैं, जिससे माहौल और वर्कर्स की तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाया जा सकेगा। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, NIC ज़राई यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाली शख्सियात ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम करते हुए कहा कि आइन की बालादस्ती, जमहूरियत और अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद हमारी मिरास है। उन्होंने कहा कि कारकुन हमारा असासा हैं, अवाम के सियासी और माशी हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने वालों में फैसलाबाद से साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली सैयद मोहम्मद अली शाह, राना अरसलान जावेद, जुल्फ़िकार कुरैशी, अली जब्बार और दीगर रहनुमा शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साहबजादे को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अंजा तारिक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, सियासी रहनुमा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और सानहा 9 मई से मुतालिक मजीद होशरुबा तस्वीर सामने आ गई हैं। शरपसंद अनासर अस्करी हस्पताल, एयरबेस सरगोदा और तालीमी इदारों पर भी हमलावर हुए। बेशतर तस्वीर ज़ेर हिरासत शरपसंदों के मोबाइल फ़ोन से फ्रांसिक के दौरान बरामद हुई हैं। पाक अमारात अस्पताल की इमारत को नुकसान और मुल्हिका स्टैंड बाय जेजिटर रूम को आग लगा दी गई है। बिजली मुनक़ता होने से इमरजेंसी में तशवीशनाक हालत में मरीजों के वेंटिलेटर्स और बच्चों के इंक्यूबेटर्स भी बंद हो गए थे। CSD लाहौर से एहतजाज के बहाने लाखों रुपए कैश लूट लिया गया। अस्करी तारीख और जंगों में पाक फौज की यूनिट्स का रिकॉर्ड रखने वाले इदारे पर धावा बोलकर रिकॉर्ड भी जला दिया गया। चकदरा किले पर हमले के बाद पूरे किले, रिकॉर्ड और गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। लेफ्टिनेंट सज्जाद आलम शहीद की यादगार पर तस्वीर को नजर आतिश करके चेयरमैन PTI का नाम लिख दिया गया। बावलनगर दरिया सतलज के सैलाबी रैली ने ऐसा रंग दिखाया कि मुल्हिका तमाम बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। इलाका मकीन शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल रहमान से। फैसल, आगाह कीजिएगा। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले ने जो ऐसा रंग दिखाया कि तमाम बस्तियों को जो है अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त जो है बावल नगर की जो दरियाए सतलुज की जो पट्टी पर जो बस्तियां थी, जो देहात थे, जो आबादियां थी, जो डेरे थे, वो तमाम जो है पानी की लपेट में आ चुके हैं। यहाँ पर जो है तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से जो फसलें जो है वो जो काश्त की गई थी वो यहाँ पर जो है पानी की लपेट में है। इसके अलावा जो बस्तियां हैं जिनमें कई ऐसी बस्तियां जहाँ पर सैकड़ों घर है, कई ऐसी बस्तियां जहाँ पे जो है वो 50-100 घर है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन जो बस्तियां जो है जिनके जो लोग थे उनके घर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। माल मवेशी भी जो है वो भी काफी मुतासर हुए हैं। जो मुतासर हुए इलाके, यहाँ पर जो सबसे बड़ा ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो खाने पीने का है। इसके अलावा जानवरों के चारे का है। लोग जो है वो परेशान इस वजह से है क्योंकि उनके लिए जो है वो मामूलात जिंदगी जो है वो शदीद मुतासर होकर रह गई है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله भारत की जानिब से पाकिस्तान में इजाफी पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला लोधरा में सैलाब से बचाव के लिए 26 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। जिला इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। लोधरा के मकाम पर दरिया सतलज के किनारे पर हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़ने के बाद लोधरा के मकाम पर इस वक्त 16,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिससे दरिया सतलुज के किनारे आबाद 15 के करीब देहात मुतासर होने का खतरा है। ज़िली इंतज़ामियात ने कहा है कि अपने डंगर मवेशी महफूज मकामात पर ले जाएं ताकि आपको हिफाजत दी जाए और हमारे रेस्क्यू अफराद जो कि हमारी मदद के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। लोधरा की जिले इंतजामिया ने सैलाबी रेले से बचने के लिए दरिया सतलुज के किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ 26 इमदादी कैंप कायम करके इनमें तमाम ज़रूरी सहूलतों को यकीनी बना दिया है। इसके साथ सैलाब की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से मकामी मसाजिद में ऐलान करके आवाम को आगाह किया जा रहा है। ये अलर्ट जारी किया है कि आप महफूज मकामात पर चले जाएँ और साथ ही उन्हें अपने रिलीफ कैंप्स के हवाले से भी आगाह किया है कि हम जो है किसी भी नागहानी सूरत में उनको जो है वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हम उनको वो भी वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की तरफ से कश्तियाँ दरिया के किनारे लगा दी गई हैं। दरिया सतलुज में पानी की आमद और अखराज को मुसलसल मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इमदादी कैंपों में दवाओं, वैक्सीन और जानवरों के लिए चारा और वनडे का बंदोबस्त भी किया गया है। लोधरा के तमाम महकमे सैलाब से निपटने के लिए अलर्ट हैं। सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल और फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने के साथ ज़िले इंतजामिया की जानिब से पानी की सतह को मुसलसल मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद नस्ली इम्तियाज के खिलाफ उनकी जद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन तारक भट्ट। 18 जुलाई नस्ली इम्तियाज मुखालिफ आलमी तहरीक से मंसूब नेल्सन मंडेला का योम पैदाइश है। नवंबर 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की अमन और आज़ादी के प्रचार के सिले में योम मंडेला के तौर पर मनाने का ऐलान किया। But it will forever remain an accusation and a challenge to all men and women of conscience that it took as long as it has before all of us stood up to say enough is enough.
नेल्सन मंडेला ने नस्ली अदम मसावात के खिलाफ मुहिम की पादाश में 27 साल कैद तन्हाई काटी। मुल्क में जारी पुरतशद्दुद तहरीक और आलमी दबाव के बायस उन्हें 1990 में रहा किया गया और 1994 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के पहले जमहूरी सदर बने। नेल्सन मंडेला को उनकी 4 दहाइयों पर मुश्तमिल तहरीको खिदमात की बिना पर नोबल अमन अवार्ड समेत 250 से जायद इनामात से नवाजा गया। नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर 2013 को दुनिया से रुखसत हुए। हसन तारिक भट्ट, PTV न्यूज। और न्यूज़ शो at 7 से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए PTV न्यूज।